مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بچے بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ٹیچر بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس ڈسٹرکٹ نیلم اس وقت پورے آزاد کشمیر میں کا ہماری ڈیلیوری میں بڑی دکھتی رہتی ہے، لیکن ابھی تک لوگوں کو صرف 2 چیزوں کا پتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کے پاس وہ ختم ہو گیا، تو اس نالج کو میں نے اس کتابی شکل میں السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے قدیر آفاقی، آپ دیکھ رہے ہیں اے جے کے پرائم ٹی وی۔ میں آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہوں جنہوں نے ڈسٹرکٹ نیلم ویلی کے اندر گراں قدر جو ہیں خدمات سر انجام دی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قمر صاحب۔ آغاز میں ان سے جاننا چاہیں گے کہ ڈسٹرکٹ نیلم ویلی کے اندر ایجوکیشنل سسٹم کس طرح کا ہے اور اس میں مسائل کس طرح کے سامنے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بات جو ہے نا کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نیلم ویلی میں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بچے بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ٹیچر بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس بلڈنگز نہیں ہیں۔ لیکن جو بیسک سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اکثر بچے جو ہیں وہ جو ڈلیور کرنے والے بچے ہیں وہ مجبوراً نیلم ویلی کو چھوڑتے ہیں، مظفر وغیرہ پہ۔ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ہماری سہولیات کافی بہتر ہیں اور مقام میں ہم کہہ سکتے ہیں ہماری بلڈنگز کا یہ ایشو ہے کہ چونکہ برفانی علاقہ ہے پورا ڈسٹرکٹ نیلم، وہاں پہ سنگل سٹوری بلڈنگ ڈیزائن چل رہا ہے کہ سردیوں میں اس کے اندر داخلہ ہی ممکن نہیں ہوتا، اور اگر بڑی مشکل سے برف ہٹا کر داخل تو ہو جائیں گے، لیکن وہ برف کی وجہ سے وہ بلڈنگ 2-3 سال کے بعد روز ہو جاتی ہے۔ تو یہ بلڈنگ ڈیزائن کا جو بڑا ایشو ہے، جو بنی ہوئی ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں اور سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہمارا ٹیچر بہت اچھا ہے، ہمارا ٹیچر اس وقت ڈسپلن وائز، حاضری وائز اور سکولوں میں آنے جانے کے حوالے سے، سکول کھلے رہنے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ نیلم اس وقت پورے آزاد کشمیر میں کا۔ ناظرین، میں ساتھ ساتھ سر سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ نیلم ویلی کے اندر برف باری ہوتی ہے، تعلیمی سیشن پورے آزاد کشمیر میں ہے، کیا وہ نیلم ویلی فارورڈ کوہوٹا جہاں پہ برف باری زیادہ ہوتی ہے، کیا وہاں پہ بھی تعلیمی جو سیشن ہے اسی طرح ہونا چاہیے؟ یہ تو بہت ہماری ڈیلیوری میں بڑی دکھتی رہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن میں جو ہماری ڈیلیوری نظر نہیں آ رہی، امپیکٹ سامنے نہیں آ رہا، اس میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ وہاں پہ بلڈنگز نہیں ہیں، اگر بلڈنگز ہوں تو یقیناً سردیوں میں ان بلڈنگز کے اندر بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر بلڈنگ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر سردیوں میں کیسے ہم تصور کریں گے کہ بھئی بغیر بلڈنگ کے بچے برف میں، اور جہاں پہ جن بلڈنگوں کے اندر برف ہے، کھڑکیاں نہیں ہیں، اندر پانی آ رہا ہے، تو وہاں پہ بچے بیٹھ کر ڈیلیوری کیا کریں گے؟ پہ ایک الاؤنس ہوتا ہے سرما گرما الاؤنس، گرمیوں کا ایکسٹرا اخراجات کا الاؤنس ہوتا ہے اداروں کے پاس، دفاتر کے پاس، اور سردیوں میں اسی طرح دفاتر کے پاس ایک ایکسٹرا الاؤنس ہوتا ہے سردیوں کا۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی الاؤنس نہیں ہے۔ اب اگر ایک مخصوص بجٹ ہو ہمارے اداروں کے پاس کہ جہاں پہ کلاس روم کے اندر ہیٹنگ کا سسٹم ہو، تو یقیناً ہمارے ہاں پڑھنے کا بڑا اچھے مواقع مل سکتے ہیں۔ جو ہمارے سرمائی اسٹیشن ہیں یہ سال میں 3 مہینے یہاں پہ ایجوکیشن ہوتی ہے۔ 25 دسمبر سے ادارے بند ہو جاتے ہیں، مارچ تک وہ بند ہوتے ہیں۔ مارچ میں ہمارے لوکل امتحان شروع ہو جاتے ہیں۔ لوکل امتحان کے دوران ظاہر ایجوکیشن تو نہیں ہو سکتی، تدریس نہیں ہو سکتی۔ مارچ اپریل مئی تک ہمارے لوکل امتحانات چل جاتے ہیں بورڈ کے۔ پہلے ہمارا لوکل امتحان چلتا ہے، اس کے بعد ہمارا ایلیمنٹری بورڈ کا امتحان چلتا ہے، اس کے بعد ہمارا میٹرک کا امتحان چلتا ہے، اس کے بعد ہمارا انٹر کا امتحان چلتا ہے۔ یہ سارے امتحان مئی تک چلتے ہیں۔ جہاں پہ سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ اکوموڈیشن نہیں ہوتی، بچے سینٹر میں بیٹھ کے امتحان دیتے ہیں، کلاسز نہیں ہو سکتی۔ اوپن گراؤنڈ میں کتنی کلاسیں ہوں گی، چھوٹی موٹی ان کی تدریس ہوتی ہے، وہ بھی موسم صاف ہوتا ہے ہو جاتی ہے، ادروائز وہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ تو جون سے یوں سمجھیں کہ ہمارا تعلیمی سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس وقت لوگوں کی مائگریشن بیک کی طرف ہوتی ہے، تو اس وقت بچوں کی حاضری بہت متاثر ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بچہ
जो समझें कि 1 महीने में मैक्सिमम अगर हाजिर रहेगा तो वो 10-12 दिन से ज़्यादा उसकी हाजिरी मुमकिन नहीं होती। बैगों का सीज़न हमारा जो है वो एंड होता है सितंबर में। सितंबर में जब बच्चे आते हैं तो उस वक्त यूँ समझें कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने प्रॉपर एजुकेशन होती है, यानी जहाँ पे बच्चों को 10 महीने पढ़ना चाहिए वहाँ पे नीलम वैली में अमली तौर पर 3 महीने एजुकेशन होती है, फिर दिसंबर आ जाता है। तो इस तरह ये जो खासकर सरमाई स्टेशन है हमारे, उन स्टेशनों पे तो अमली तौर पर साल में सिर्फ 3 महीने तालीम होती है, बाकी तो तालीम होती नहीं है, इसलिए भी हमारी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। ताहम अगर इसके मुतबादल अगर सर्दियों में इंतज़ाम ठीक हों, हमारी बिल्डिंग्स ठीक हों, हमारी बिल्डिंग्स के अंदर हीटिंग के लिए बजट मौजूद हो, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। हमारा एजुकेशन का मेयार भी बुलंद हो सकता है। तो ये एक डिस्पैरिटी है जिसकी वजह से हमारा स्पेशली जो सरमाई स्टेशन है वहाँ का निज़ाम तालीम जो है ना वो मैच नहीं कर रहा बाकी स्टेट सिस्टम के साथ। हमारा टीचर पढ़ा लिखा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। स्पेशली हमारे साइंसेस के जो लोग हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे पास स्टाफ मौजूद है, पढ़ा लिखा स्टाफ मौजूद है, लेकिन मतलब पढ़े लिखे स्टाफ को कहीं पे बैठ कर पढ़ाना है, कहीं पे डिलीवरी देनी है, वो बड़ी परेशानी है। और फिर एक और चीज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एजुकेशन, इसमें बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन है। अब जून में बजट पेश होता है, किसी स्कूल की बिल्डिंग के लिए पैसे मुकस होते हैं, सितंबर में उसके लिए रिलीज़ आती है कि भाई ठीक है इसका स्कूल के लिए इतने पैसे हैं बिल्डिंग के लिए, तो इसने बनना है जनाब इस साल। तो एक पहली क्वार्टर की रिलीज़ आती है सितंबर में, रिलीज़ आने के बाद उसका इश्तिहार जाता है, एडवर्टाइज हो जाती है, 45 दिन इश्तिहार के लिए ज़रूरी होता है। इश्तिहार होता है, ठेकेदार को काम अलाट होता है, नवंबर में ठेकेदार मोबिलाइजेशन करता है, दिसंबर में बर्फ पड़ जाती है और जो मोबिलाइजेशन है उसकी वो वापस बैक हो जाती है, वो बर्फ रहती है अप्रैल तक। अप्रैल में हमारे नए बजट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो जो हमारा जो पैसा वो जो खर्च नहीं हो सका वो अल्टीमेटली जहाँ पे ज़्यादा काम है नवाब कश्मीर में एक्सेस काम लोग हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो नए सिरे से दोबारा यही रूटीन पूरा साल चलती रहती है। जिसकी वजह से ये न सिर्फ नीलम वैली बल्कि हमारी लीका वैली का भी यही इशू है। हमारे ये जो कुकड़ा और लचराट का वो एरिया जो बर्फ़ की ज़ोन में है उसमें भी यही इशू है। हमारा कोकटा फॉरवर्ड कोकटा पूरा डिस्ट्रिक्ट वो भी उसमें भी डेवलपमेंट का यही हाल है, जिसकी वजह से हमारे इन्हीं इलाकों में स्कूलों की बिल्डिंग न होने की एक वजह ये है। और उसका इम्पेक्ट क्या है कि हमारे पास बच्चे तो स्कूल में जाने वाले हैं, लेकिन ये है कि हम बच्चों को कहाँ बिठाएं। हमारे स्कूलों की सिचुएशन क्या है कि एक हाई स्कूल सुरबन की हमारे पास एक अच्छी बिल्डिंग है, एक हाई स्कूल कुटन की हमारे पास एक अच्छी बिल्डिंग है, एक हाई स्कूल जूरा की हमारे पास अच्छी बिल्डिंग है। बाकी हमारे पास बेशतर स्कूल जो हैं वो प्राइमरी स्कूलों की 3 कमरों वाली बिल्डिंग में हाई स्कूल चल रहा है, 30-40-50 हाई स्कूल हैं। बिल्डिंग की ये सूरत हाल है कि उसमें 5-6 के पास बिल्डिंग है, तो इतने बच्चे आखिर कहाँ बैठेंगे और उस्ताद उनको कहाँ पढ़ाएंगे और कैसे। साथ साथ नाजरीन मैं ये जानना चाहूँगा सियाहत में वो किस तरह के मसाइल नीलम वैली में चल रहे हैं, अगर उनको दूर किया जाए तो हम टूरिस्ट को नीलम वैली में ला सकते हैं। सियाहत में डिस्ट्रिक्ट नीलम वैली कैसा है, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ सियाहत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जाना चाहिए और मसाइल किस तरह के उनको मुस्बत तरीके से किस तरह से उनका हल जो है मुमकिन। जी आपने ये मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है कि बुनियादी तौर पे मैं प्रोफेशनली एजुकेशन में तो काम करता हूँ, लेकिन मेरी जो रिसर्च स्किल है वो है कुदरती वसाइल। कुदरती वसाइल में जो उससे भी ज़्यादा जो है वो है कुदरती वसाइल में से वो जंगली याद है। बतौर बायोलॉजिस्ट या फील्ड बायोलॉजिस्ट मेरी बेशतर ज़िंदगी जो है वो ऐसे गुजरी है कि मैं
जो रात 2 या 3 बजे मैं फील्ड में होता था। अब तो खैर पोजीशन नहीं रही, बूढ़ा भी हो गया, शब रोज़ बदल गए हैं कि मैं 3 बजे फील्ड में रहा। मैं वापस 8 बजे घर पहुंचा, नाश्ता किया और कॉलेज चला आया। इस आदत की वजह से मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैंने चावी के पहाड़ से लेके ग्यारी जो बड़ा मशहूर हुआ है, उस वक्त तो इसका नाम पाकिस्तान के लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस हादसे की वजह से ग्यारी बड़ा मशहूर हो गया है। वो सियाचिन का बेस है, वहाँ तक मैं पैदल घूमा हुआ हूँ पूरे इलाके में। तो जहाँ वाइल्ड लाइफ को देखने की ख्वाहिश होती थी, उसके साथ साथ मुझे कुदरती वसाइल से बाकी वसीलों से भी बड़ी मोहब्बत हुई। नीलम वैली अब देखें ना, कहीं पे आपको पहाड़ मिलते हैं, कहीं पे आपको जंगल मिलता है, कहीं पे आपको दरिया मिलते हैं, कहीं पे आपको सिर्फ मैदान मिलते हैं, कहीं पे आपको ग्लेशियर मिलते हैं। नीलम वैली वाहिद ऐसी जगह है इस पूरे पाकिस्तान में, इस रीजन में, जहाँ पर ये आपको सब कुछ एक नीलम वैली में मिल जाता है। नीलम वैली में आप जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आपको मिल जाती हैं एक ही जगह। तो नीलम वैली को अल्लाह ताला ने इस हवाले से बड़ा खूबसूरत बनाया है कि नीलम वैली में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक टूरिस्ट के लिए जो अट्रैक्शन की चीज़ें होती हैं, वो पहाड़ होता है, वो जंगल होता है, वो खूबसूरत लैंडस्केप होती है, नदी नाले होते हैं, झरने होते हैं, आबशारें होती हैं, झीलें होती हैं। 75 झीलें नीलम वैली में, छोटी बड़ी मिला कर, लेकिन अभी तक लोगों को सिर्फ 2 झीलों का पता है और उन्हीं पे जाते हैं, बाकी का किसी को पता नहीं है। 75 झीलें हैं और मैंने अल्लाह के वजह से तकरीबन हर झील पर पहुँचा हुआ हूँ, हर झील को मैंने देखा है, एक से बढ़ के एक है। तो टूरिस्ट की मतलब की चीज़ें यही होती हैं। अगर हर झील है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, वो उसको इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट वेटलैंड का दर्जा दिलाने में भी हमने बड़ा काम किया है कि वो इस वक्त इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है। नीलम वैली में बिजक वक्त 2 तरह के वैली ग्लेशियर हैं, बेताशे, और शौशर के एरिया में, कपोट के एरिया में ये वैली ग्लेशियर है। ओवर हैंगिंग ग्लेशियर जो अम्ब्रेला ग्लेशियर हैं वो भी हैं। तो ये वही ग्लेशियर हैं जो सियाचिन वाले ग्लेशियर हैं और ये थर्ड पोल का हम हिस्सा है। नागा पर्वत हमारे नीलम वैली का ताज है कि जिस नागा पर्वत के इस जनूबी साइड पे ये नीलम वैली वाक़ है, उसी की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर भी हैं, उसी की वजह से बर्फ़बारी भी है, उसी की वजह से यहाँ पे मानसून की बारिशें भी हैं। और यही चीज़ है कि जो एक टूरिस्ट को देखने की शौक़ होती है कि वो बिजक वक्त इन सारी चीज़ों को देखना चाहता है। तो कुदरत के जो नज़ारे हैं वो नीलम वैली में जा बजाए, वो एक से बढ़ के एक बात लोगों के ज़हन में रहनी चाहिए कि टूरिज़म बड़ा सेंसिटिव शोबा है। मैंने जितने शोबों को देखा है अपनी ज़िंदगी में, इंतहाई सेंसिटिव शोबा जो है वो टूरिज़म है। जो टूरिज़म रिलेटेड एजुकेशन है वो अगर नहीं मिलती तो यकीनन वहाँ टूरिज़म ना था। और मैं लास्ट में सर से पूछना चाहूँगा कि आपके कुछ पेपर भी जो है इस हवाले से पब्लिश हुए, कितने पेपर हैं और किस पे सर आपने? तो मेरे 10 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं इस वक्त तक और उनमें से 3 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में हैं और बाकी नेशनल में हैं। और हैं ये सारे के सारे कहीं लेपर्ड और इंसान का झगड़ा, कहीं उस पर मेरा काम है, कहीं काले रीछ और इंसान का झगड़ा उस पर मेरा काम है। उसके बाद ये जो कस्तूरी वाला हिरन है, इसकी मजलूमियत है कहीं पे किसी रिसर्च पेपर में। इस तरह की चीज़ें हैं। मैंने बॉटनी पे किताब लिखी थी कि मछियारा नेशनल पार्क के अद्वियाती पौधे, बड़ी अच्छी किताब है। उसमें इनको खुदा न खास्ता मैंने कोई उधर तोप नहीं मारी। मैंने एक वो नॉलेज है जो सदियों का नॉलेज है, जो इस वक्त हमारे बूढ़े लोगों के पास रह गया, हमारी बूढ़ी औरतों के पास रह गया है, हमारी नौजवान नस्ल के पास वो ख़त्म हो गया है। तो उस नॉलेज को मैंने उस किताबी शक्ल में लिखा है और वो एक बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी खूबसूरत किताब है।
دوسری کتاب جو میں نے لکھی تھی وہ گیلی فارمیز آف اگاسٹس کی، وہ بڑی اس لحاظ سے کہ یہ جو گیلی فارمیز ہوتے ہیں جو بڑے جن کو مرغان کہتے ہیں، بڑے موٹے پرندے جو ہوتے ہیں جن کو کسی زمانے میں گیم برڈ کہا جاتا تھا. ان کے ریسرچ پیپر دیکھ لیں، تصانیف دیکھ لیں، ان میں حقیقی جو عکس ہے وہ نظر آتا ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آپ دیکھتے رہیے AJK پرائم TV. میں ہوں قدیر آفاقی.